बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिग बॉस सीजन 1 में मेरे साथ थी स्मिता और 3 साल हो गए उसको। आज सब मिलने वाले हैं। हम भी सारे कॉन्टेस्टेंट्स फ्रेंड्स मिले नहीं है काफ़ी साल। पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, आई होप ख़त्म हो गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, सब मिलने वाले हैं। हम लोग अक्सर इवेंट्स में मिलते हैं, शूट्स पे मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बातचीत होती है। it's fun to interact and so amazing। और बहुत खुशी है कि ये स्मिता ने बिग बॉस मराठी का रीयूनियन जैसा एक इवेंट कराया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड आई एम श्योर द पार्टी इज गोना बी रॉकिंग। थैंक यू। I'm very excited today, and actually it's been kind of a tradition that after every season of Big Boss Marathi, I usually like to host a party so that we all can come together and forget all the negativities in the Big Boss and remember all the positive things. So after the first season we had a party, after the second season we had another party. Third season के बाद obviously because of the pandemic it was getting a little difficult to organize this event, but finally this is the right time and all three seasons are coming together. इतना ही नहीं तो जो हिंदी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं हिंदी बिग बॉस में, थोड़े लोग बाहर आज काम कर रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे मुंबई में हैं, तो आज ज़रूर वो भी आएंगे। दे वुड लाइक, आई मीन, सो इट्स नॉट ओनली मराठी, इट इज़ फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, एवरीबडी, एक्चुअली इन फैक्ट everybody who's been a part of Big Boss is welcome to my party. I would love to have them all because this entire journey has really made us rediscover a lot of things about ourselves, and it is just a reminder for us कि वो जो discovery हुई है, जो rediscovery हुई है, it's kind of a remembrance, or you can call it a reminder for us to still be grounded and connected, because Big Boss is such a platform कि किसी को भी इधर से वो इधर ज़मीन पे ला देता है और वो ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज समवेयर इट इज़ फॉर अस टू बी टुगेदर एंड be connected to each other and be grounded as well. Can we see you in the Hindi Big Boss? No, I think, you know what, I've already done the Marathi Big Boss, so I'm pretty happy with this entire journey. I think Hindi again, I don't think so, but I think I'm good with this one journey. It was really a beautiful journey for me, so बहुत अच्छा लग रहा है. And first of all, yes, I want to definitely thank BPM for being the location partner and hosting this event with me. So thank you so much, BPM. And also I would like to thank Picture and Craft, my very good best buddy out here. Come here. Actually, she doesn't want to come. She's shying away. Parul is here, right here. Thank you so much, Parul, because without you, this event was simply not possible. And we also have very important partners this time. We have Scribble and Pop events. And I would like you to meet my friend. Come. So I have my friend Kunjal with me here. And the entire, she has curated the entire decor of this place, which is very amazing. I think it's beautiful and it's very classy. I loved it. So I think she's been an important part of my this party today, this evening as well. Thank you so much. How was your experience? That's great. Okay, the evening is still about to start. I would definitely ask her that probably by the end of the evening. So thank you. Oh my God, कौन favorite? Of course, I mean, see, everybody has their pluses and minuses. कोई चीज़ें किसी में अच्छी लगती है, कोई चीज़ें कोई में खटक जाती है. But I think हिंदी की बात करें तो obviously we had very good players this time. It's very important how you look at the game. कि आप इंसान अच्छा ढूंढ रहे हो या एक प्लेयर अच्छा ढूंढ रहे हो. Everybody has different mindsets to it. So I will not say take a particular name. अगर कोई मुझे इंसान अच्छा लगा है, as a human being अच्छा लगा है, किसी की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, किसी का बर्ताव अच्छा लगा है, so it is very different. I will not like to name one person because everybody is very different in their own way and everybody is very special, and that's the reason they are in Big Boss. It's not an easy game. बहुत आसान नहीं है यहाँ रहना, वो भी इतने दिन. तो everybody is unique in its own way. Thank you. Oh, rolling effect. Oh. And he's been a very important support for me while I was in the Big Boss house, but moreover while I was still there and from outside for some particular
is for sure, but for some particular reasons he had to get, leave the show in between, but due to health reasons, yes. But but he has supported, he stood by my side, rock solid, and was supporting me from outside, so thank you so much, Sushant. I still remember, मुझे याद आ रहा है, I remember all those moments that you were really working hard and you were out and you were really doing everything that you could do and wanting me to win. Thank you so much, and thanks to you, because of you I think I was there in the finale as well. What do you want to say about the party? कुछ नहीं, बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल के बाद हम सारे लोग मिल रहे हैं। एक तो 2 साल का लॉकडाउन का पीरियड था, वो सभी के लिए टफ था, और ये पार्टी जो है ये बहाना है, लेकिन स्मिता गोलकर ये जो कुछ भी अरेंज कर रही है पिछले 3 सालों से, वो सिर्फ वही कर सकती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, सबको मिलने के लिए बहुत तरस रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज की शाम बहुत रंगीन होने वाली है। Thank you so much, sir. थैंक यू। बिग बॉस में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन टास्क अगर खेलने को ना मिले तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बिग बॉस में अगर कोई मेरा सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त है वो स्मिता गोलकर है, और वही मतलब मैं आपको इस बहाने बताना चाहूँगा। थैंक यू। नॉर्मली मराठी बिग बॉस से हिंदी बिग बॉस में काफ़ी जाते हैं, क्या आपको हिंदी बिग बॉस में हम देख पाएंगे? जी, मैं बहुत खुशी है, मैं मराठी बिग बॉस में पार्टिसिपेट था और मैं एक ही बिग बॉस से खुश हूँ। अभी मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता। थैंक यू। गेट टुगेदर फ्रेंड्स की किस तरह की एक्साइटमेंट आज की शाम? मुझे नहीं लगता ये कोई और कर सकेगा स्मिता के अलावा। आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्योर सोल एंड शी इज़ अ वेरी गुड सोल, एंड ये थॉट भी किसी के दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से उसको करके दिखाना, इट्स नेक्स्ट लेवल। सो आई थिंक हर साल वो पार्टी रखती है, जैसे सेकंड सीजन के लिए भी रखती थी, अभी ये थर्ड सीजन है, तो थर्ड सीजन में तीनों सीजन के लोग हैं। हम भी काफ़ी कम मिले हैं, मैं तो थर्ड सीजन में गई थी अंदर, बट ये जो वो मौका देती है एक दूसरे को पहचानने का, घुल मिलने का, आई थिंक ओनली स्मिता कैन डू इट, बिकॉज इज अ लवली पर्सन एंड आई लव हर। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? यस ऑफ कोर्स, माय सीजन वाज द फर्स्ट सीजन, पहला सीजन था, और इस सीजन में अगर मुझे कुछ मिला है तो ऐसे दो दोस्त कमाल के मिले जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। उसमें से एक है स्मिता ऑफ कोर्स, और दूसरा आस्था। व्हाट डू यू थिंक बिग बॉस मराठी और हिंदी बिग बॉस में क्या डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज? गेम इज द सेम ओनली, आई डोंट थिंक सो गेम इज डिफरेंट, दोनों जगह गेम सेम ही है, खाली लोगों का तरीका उसे खेलने का अलग है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र होते हैं तो मराठी लोग होते हैं, तो मराठी होता है, अब हर किसी के मराठी लोगों के सोचने का तरीका अलग है। वहाँ मतलब नॉर्थ से भी होते हैं, साउथ से भी होते हैं, गुजराती, तो हर इंसान अलग अलग प्रांतों से आता है, तो सोचने का अलग, तो दे रिएक्ट डिफरेंटली, तो इसलिए वो गेम बहुत अलग दिखता है। क्या आपको बिग बॉस हिंदी एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं आप? क्या हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं, बिग बॉस हिंदी की? अभी ऑलरेडी जब मैं गेम जानती हूँ, मैं गेम समझती हूँ, मुझे पता है गेम कैसे खेलना, वो बेवकूफ़ थोड़े मुझे वापस बुलाएंगे। सी यू बाय। Smita's party is always special. When we came out of Big Boss, even then also she had hosted a party for us. She has this such a sweet gesture that she makes every year, makes it a point to bring all of us together. Memories are of course coming back because our season seems like it happened ages ago because of the lockdown, but now all of us are going to meet today. We're just going to have fun. That is all I'm looking forward to. Big Boss memories would you like to share that's always there in your heart? The best memory that I can remember from my season is when I was standing on that podium where the whole journey of our Big Boss season was shown to me, and then when Big Boss praised me and said that the house and Big Boss, whom I had considered as a father figure, would never forget the daughter that he got in that season. I think when he said that, that was very emotional for me, and that's absolutely memorable for the rest of my life. Now that the kind of response Big Boss Marathi is getting, initial stage of Big
Tamil or any language that Big Boss happens in. The place, the space, the home, the house is made of the people it consists. So वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो 15-17 लोग वहाँ पे रहते हैं, वो सीज़न बनाते हैं, इसलिए हर सीज़न अलग होता है, हर सीज़न इंटरेस्टिंग होता है और एंटरटेनिंग होता है. थैंक यू. एक्चुअली बिग बॉस सीजन 3 में हम थे और 3 के जो कंटेस्टेंट है हम 2-3 बार मिले हैं, लेकिन जो फर्स्ट सीजन है, सेकंड सीजन है, उनको सिर्फ हमने टीवी पे देखा है या फिर हम कभी मतलब मिले नहीं है. तो ये रीयूनियन जो है वो बहुत अच्छा है और हमें भी इनवाइट किया, तो स्मिता जी ने जो एक अच्छा गेट टुगेदर रखा है, तो हम बहुत खुश है कि हम सभी इकट्ठा होंगे और आगे भी जो है वो जो मिलकर आगे कांटेक्ट में रह सकते हैं. मैं भी अभी सीजन 3 में थी, थोड़ा लाउड सीजन 3 में थी और फर्स्ट और सेकंड सीजन के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं सेम लाइन में काम करती हूँ. ये तो बात है, हम लोग तो मिलते रहते थे, हम लोगों की बातें भी होती थी. लेकिन ये था कि थर्ड सीजन में जब मैं गई और मैंने देखा कि एक्टर्स बहुत कम है और कोई मॉडल है, कोई मतलब जैसे जय था, विशाल था, तो बाहर से आए हुए मुझे सब नए थे मेरे लिए. लेकिन ये जो मेरे पुराने जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा था अंदर कैसे रहना है, क्या करना है, लेकिन मज़ा आया. और स्मिता ने ये जो पार्टी आज अरेंज की है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये इस मौके पे आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड सीजन के सभी लोगों को मिल सकते हैं और हम गेट टुगेदर कर सकते हैं. ओके मैम, सोशल की बात करें, सोशल में आप काफ़ी मंदिरों के लिए काफ़ी मदद करें, उसके विचार किस तरह से विचार आते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ. अब जिस तरह से काम किया है, इसीलिए जो देश में एक एग्रेसिवली में काम करती हूँ, इसीलिए बिग बॉस में भी बुलाया गया. और मुझे एक अच्छा लगा कि ये सब जो है वो एक्टर एक्ट्रेस इसमें थे, लेकिन इस बार सोशल वर्कर भी उन्होंने बुलाया था. और जब सीजन 3 में हम गए तो बहुत अच्छा थीम भी उन्होंने किया था, सब महिलाओं को लेकर थीम उन्होंने की, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है. बहुत लोग कहते थे कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो पता चला कि ये पूरा रियलिटी शो है. आगे कुछ होता है ये हमें भी नहीं पता चलता है और कुछ हम वहाँ पे छिपा भी नहीं सकते. हम जैसे हैं वैसे वहाँ पे दिखते हैं और वो अच्छा लगा कि लोगों के यहाँ पे हम 24/7 हम जैसे हैं वैसे पहुँचे, इसलिए वो बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म था तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था. थैंक यू वेरी मच. ओके. Yes, we are almost meeting after 2 years, after lockdown, after corona, after everything. So we are so much excited, and all the memories are coming up in my mind, that what we were enjoying and what we were suffering from. And I'm eagerly waiting for next season. So let's see, let's hope for the best. Big Boss memory would you like to share? Actually, there are so many memories, but actually there are so many tasks, but क्या share करूँ मैं? Actually there is so much of mess in my mind, but every memory of Big Boss was very wonderful. We learned something and we experienced something new. So everything was so special. Whether it was negative, it was just there to teach us something, and whether it was positive, so it was just to enjoy over there. So everything is so special. Okay, so if you want to fix any difference between Big Boss Hindi and Big Boss Marathi, what it is? Apart from language. There are actually so many differences. If you observe that Marathi crowd or Marathi Big Boss was quite aggressive. If you can understand, मतलब there was in Hindi, even if someone touches like this, so they call it a Big Boss, ये violence कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. पर मराठी में it was like so much of aggressiveness was there, and no one was ready to cool down or to calm down, and somewhere this aggressiveness was necessary also, and that was the thing which was there to differentiate the Hindi Big Boss and Marathi Big Boss. It was good also, it was bad also, but that was the difference. Okay, so now you are part of Big Boss Marathi, so if you get a chance for the Big Boss Hindi, so you will go? I'll have to think a lot about it, because when I came out of the Big Boss, now the reason was not that audience disliked me. Actually, my handwork
was fractured because of the violence had happened in the house, and that's why I was so scared that I didn't want to go back. So if I am sure that no kind of violence is going to happen, then I could think about it. But if there is such kind of crazy aggressiveness, then I don't think so I will take a chance. Okay, so apart from Hindi Big Boss, is there any reality show? Apart from that, Khatron Ke Khiladi is very nice show actually. It is that show is good for aggressiveness because show is not for that physical violence. So yes, for something different, if I want to explore, then Khatron Ke Khiladi would be the nice show. Thank you so much. Thank you. Thank you. बुलाती रहती है और बहुत अच्छा लगता है जब हम बिग बॉस के न्यू कंटेस्टेंट से मिलते हैं और एक अच्छा रहता है कि हम पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं लोगों के साथ और जो नए लोग होते हैं वो भी अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। बिग बॉस की बात करें, मराठी बिग बॉस की स्पेशली, क्या कुछ ऐसा देखते हो जो काफ़ी स्पेशल है हिंदी बिग बॉस की अलग? मराठी बिग बॉस में सबसे पहले तो यार ये महाराष्ट्र को भी कनेक्ट करता है। अभी मैं हिंदी बिग बॉस से हूँ बट मैं मराठी भी देखना इसलिए पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मराठी सीखने को भी मिलती है, आगे काम आएगी। और नेचर थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं सबके, जैसे अभी हिंदी बिग बॉस में थोड़ा सा एग्रेसिव होते थे, यहाँ थोड़ा काम से भी खेलते, थोड़ा आराम से ये लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से बिग बॉस हिंदी की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी कमाल की जर्नी थी। उसके बाद कभी आपको ऐसा मौका मिला था कि हम फिर से आने नहीं यार, बिकॉज बिग बॉस एक बार करना था, कर लिया। अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अभी नेटफ्लिक्स कर रहा हूँ मैं, जमुना पार, गुराली कांड, जो दिल्ली के 13 लोग एक साथ जो जिनने फांसी लगा दी थी, उसमें मैं लीड कर रहा हूँ। तभी ऐसे कंटिन्यू प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अमेजॉन प्राइम के 9 सीजन साइन किए हैं, वो चल रहा आता है, कॉल आता है, कॉल आते रहता है रियलिटी शो के लिए, बट अभी फिलहाल के लिए एक्टिंग में मूव कर रहे हैं। ऐसा कोई रियलिटी शो जो आप करना चाहो बिग बॉस के अलावा? बहुत सारे अलग अलग रियलिटी बिग बॉस के बाद अगर कहीं जाना चाहूँगा तो खतरों के खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। किस तरह से एक्साइटमेंट है आज की शाम को लेकर? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, बिकॉज हम सब एक दूसरे को जानते हैं, 3 सीजन हो चुके हैं, पर कभी ऐसी सबसे मुलाकात हुई नहीं। एंड बीच में जो भी सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे तो और भी मुलाकात होना मुश्किल था, बट आज व्हेन रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर, वी आर अलाउड टू मीट, वी कैन रीड। आई थिंक आज सब लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आई थिंक इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। बिग बॉस हैज़ बीन अ वेरी फैसिनेटिंग राइड, एंड हर एक की अपनी अपनी जर्नी हम यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एंड अपने ही लोगों को दोबारा एक बार यहाँ पे मिलना बहुत ही खुशी की बात है। बिग बॉस मराठी की मैं बात करूँ तो क्या कुछ ऐसा स्पेशल आपको नजर आता है जो बिग बॉस नजर नहीं आता है? बिग बॉस हिंदी में नजर नहीं आता, पता नहीं यार, मैं बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज बिग बॉस हिंदी मैंने अभी तक किया नहीं है, बट आई थिंक व्हाट्स ऑलवेज स्पेशल अबाउट मराठी और बिग बॉस मराठी इज दैट बीइंग अ महाराष्ट्र आई कुड से कि मैं लोगों को रिलेट कर सकता हूँ, लोग हमें रिलेट कर सकते हैं। सारे तीनों के तीनों सीजन्स बहुत ही फैंटास्टिक हुए हैं, एंड आई थिंक एक डिग्निटी के साथ डिग्निटी मेंटेन करके सारे तीनों सीजन्स सफलता से कामयाब हो चुके हैं। एंड आई थिंक महेश मांजरेकर एन इनक्रेडिबल होस्ट अलॉन्ग विद सलमान खान इन हिंदी। सो आई थिंक मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन आई थिंक मेरे बिना महाराष्ट्रन मेरी जो जर्नी थी बिग बॉस मराठी में वो काफ़ी मजेदार थी, बढ़िया थी। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मैंने एक्चुअली ये सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक यस, कभी अगर एक जिंदगी में ऑफर आती है तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अप टू द सर्कमस्टेंसेस दैट टाइम कि मैं कौन सा शो कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो सारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि मैं हिंदी करूँगा नहीं। बट आई थिंक इट इज एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म फॉर एनी एक्टर और एनी इंडिविजुअल हु वांट्स टू मेक अ नेम। सो आई थिंक या आई माइट डू इट। नीता जो है ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, दिया है मुझे, तो मुझे आना ही पड़ेगा, बराबर है? आप लोगों ने तो देखा है ना सबने। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बस स्टेट का क्या बोलते हैं कि स्टेट का मीडिया है क्या? मैंने कितने फूल खिलाए हिंदी में, आपको पता नहीं है? क्या डिफरेंट आप देखते हो मराठी में क्या फर्क आपको
मुझे 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 ऐसा लगता है कि जो भी कंटेस्टेंट थे तो मराठी वाले ना थोड़ा ज़्यादा नखरा करते थे और मुझे ज़्यादा प्यार जो मिला वो हिंदी में मिला सिर्फ एज ए कॉन्टेस्टेंट। जैसे भी राखी आई तो उसमें मुझे दादा बोल दिया, तो करण ने भी दादा बोल दिया, जो भी लड़कियाँ थी अंदर और जो भी जेंट्स थे वो सब मुझे दादा ही बुलाते थे। इधर नखरे बहुत ज़्यादा करते थे मराठी वाले। हाँ, उनको पता चल गया है कि अभी मराठी का स्टार कौन है, मराठी इंडस्ट्री में स्टार कौन है। हिंदी में बात करें तो करण से काफी बातें हुई बिग बॉस के घर के बाद, तेजस्वी नीति शो। नहीं, मुझे निशांत ने कॉल किया था कि सविता का बर्थडे है, लेकिन उस दिन मैं सांगली में था, तो सांगली से मुंबई में आना और 2-4 घंटे में नहीं हो सकता था। और एक रिलेशन से अच्छे बने थे क्योंकि सविता क्या मेरे कुछ दंगे भी हो गए थे ना, तो मैं बोला कि नहीं जाना है मुझे, चलो। लेकिन सुनीता जो है ना, ये पहली लेडी है जिसको पता था कि मैं बिग बॉस मराठी में आ रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्टार बनोगे और खूब खिलाओगे, और मैं पूरा दिया। प्रतीक सेकंड आए, तेजस्वी पहले आए, काफी बातें हुई कि प्रतीक जीतने चाहिए थे उस शो। आपको किस तरह से डिजर्व करती है तेजस्वी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो बायस रिजल्ट है उसका। जब मैं बोला कि वो सविता को जिताना चाहते थे, मैंने बोला आपको पता होगा कि अपना स्टेट मीडिया जो है, जो भी अपने चैनल है उस पर मैंने बात की थी, तो जैसे ही मैंने मेरे दिल को जो बातें की कि क्या उधर बंधा हुआ था सलमान का और मेरा वो ये सब, तो उन्होंने ये बायस में कर दिया कि महाराष्ट्र की लड़की जीते। पहले तो वो सविता को जिताना चाहते थे, वो मुझे पता है, और उसने जाके प्रतीक को भी नहीं जिताया, करण को भी नहीं जिताया। अगर देखा जाए तो करण भी डिजर्विंग था और प्रतीक भी डिजर्विंग था, क्योंकि पूरे साउथ इंडियन उन्होंने निकाले थे अच्छे से, और एज ए इंसान वो बहुत अच्छे हैं दोनों भी, करण और प्रतीक। काफी कंट्रोवर्सी हुई आपकी हिंदी बिग बॉस के इलेक्शन के बाद। अब किस तरह का सिचुएशन है, क्या कुछ नहीं, उसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। कंट्रोवर्सी का मैटर नहीं रहता कि भाई आप कोई क्रिया करोगे, आप कुछ बोलोगे, अगर आप मुझे दादा बोलते हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर मुझे आप तिरछी नजरों से देखते हो तो मैं आऊँगा फिर। वैसे ये नहीं होता कि रिएक्शन मैंने दी थी, सलमान का जो मैटर था उस पर मैंने रिएक्शन दी। आपको हम फिर से बिग बॉस देख सकते आने वाले दिनों में, क्योंकि बिग बॉस हिंदी फिर से आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडोमोड चाहता है, इंडोमोड ने मुझे महाराष्ट्र से लेके हिंदी तक पहुंचा दिया, तो बुला लेंगे, वो शायद बुला लेंगे, क्योंकि ये तो हर वक्त होता रहता है। क्योंकि एक्शन किया था सलमान जी ने, तो उसके बाद में मैंने रिएक्शन दिया, और मैं रिएक्शन कभी भी बदलता नहीं हूँ और ना कभी बदलूंगा। पर अगर आप फिर से हिंदी बिग बॉस में आए, दोस्त तो सेम ही रहने वाले हैं सलमान सर, तो क्या आप फिर से अगर जाओगे तो सलमान सर भी अपना दोस्त करना पड़ेगा? वो करेंगे ना, ये क्या है। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, तो इंडस्ट्री में ही रहना है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी फिल्म लेके आ रहा हूँ, आपको तो पता ही है। अभी उसका हीरोइन का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा वो कवर करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे, करूँगा हिंदी फिल्म करूँगा। लेकिन आज थोड़ा सा डर गया हूँ मैं सुबह। आपको पता होगा कि सब चैनल पे न्यूज़ चल रही है कि भाई ये चौथी लाख आने वाली है, ये वेव आने वाली है चौथी, तो थोड़ा सा सहम गया हूँ मैं। वो दिखाई भी देता है मुझे, क्या भाई ये लोग हमको मरवा देंगे क्या? ये जो हमारी जो कि फरसे से लेकर हाथ तक जो लोग रहते हैं यहाँ, मर जाएंगे यार, काम नहीं मिलेगा किसी को। पता है 2 साल से हम क्वारंटाइन थे। अगर ये महाराष्ट्र शासन या ये कोई अपना पूरा जो केंद्र सरकार जो है, अगर ये वियोग का नाटक करेगा ना, तो सब मर जाएंगे यार, खाना पीना नहीं मिलेगा किसी को। तो अभी के अभी उनको मैं चाहता हूँ आपके जरिए बताना कि पूरा प्री प्लान करिए कि चाहे अभी स्कूल बंद कर दो, क्यों बच्चे और कॉलेज के लड़के लड़कियाँ क्यों घूम रहे हैं यार? उनके वजह से बहुत क्या बोलते हैं उसको कि कॉज होता है, बहुत होता है ना, उनको बंद करके घर में भेजो, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये सरकारी कामकाज चलने दो यार। Oh my God, I'm getting nostalgic because I was in Big Boss season 3, which was in the Hindi Big Boss of the Marathi one, and it's
very close to my heart because I was just a designer. People knew me as a good designer, but I became a household name, and it completely changed my life. I became like a so famous that till today people remember me from Big Boss. I think so. It's a global platform where people emote their emotions. It's a show of love. It's a show of hatred. So I enjoyed it. All the contestants of my season Big Boss, they're all of my friends. Cash is here. Cash was in season 1, I think so. She was in season 1, and I think it's a great show. How do you see the reality show? Because there are two reality show Big Boss. See, I know talking to Marathi, but I believe Kishore Shani was there in this in Marathi because I saw a couple of episodes, but I think so it's very global platform that every regional think they are having a Big Boss of every region. So I think it's very good for the channel. इसी निशा जी की मैं बात करूँ, काफी एक अच्छा एग्जाम्पल लॉकअप पे उन्होंने सेट किया है, बीइंग अ ग्रेट लीड। इस तरह का गेम आपको लगा लॉकअप में? निशा मेरी फैमिली है, शी माई फ्रेंड, एंड मैं उसको जानता हूँ, उसने बहुत डिग्निफाइड से खेला है, ओके, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर द वे शी प्ले, एंड भगवान करे शी शुड बी ऑलवेज हैप्पी, आई ओनली कैन विश हर वेरी गुड लक। इन अप्स एंड डाउन यू वर ऑलवेज देयर, काफी कुछ बातें हुई, उसका चर्चा में कुछ आप कहना चाहोगे? नहीं, ये मेरा पारिवारिक मैटर है, मैं इस टाइप का मैं नहीं बात करूँगा। थैंक यू सो मच। Big Boss reunion and you are always a great fan of Big Boss. So how do you see this reunion? Well, you guys don't know, but I'm a very big fan of Big Boss Marathi also. I've always watched it and always tweeted about it. And I really like Smita. Smita was the most beautiful, most classy, and very best person of season 1. आणि मला नाही वाटत की तुझ्यापेक्षा जास्ती कोणी चांगले कपडे घातले सगळे सेकंड क्लास वाटतो छान कपडे घातले व्हेरी क्लास व्हेरी नाईस. Okay, so apart from language, what is the difference between you say the Big Boss India and Marathi? I see no difference. I think both of them are really good. They are both equal. दोन्ही धाडक आहेत, कडक आहेत. त्याच्यात काही डिफरन्स नाही. कोणी एका जागेवर सन्मान सर आहे, एका जागेवर Actually, even what happens is emotions are same, emotions are same, moods are same, you have to react to same, so it's not different. Same thing, party or anything like that. task also as well. In future, can we see you with Big Boss? You ask others, I don't know. Okay, so मैम लॉकअप भी चल रहा है, किस तरह से आप फॉलो कर पा रहे हैं? अभी बिग बॉस की बात में डॉक्टर का कैसे बोलूँ, मुझे अच्छा लग रहा है डॉक्टर। अभी आप कॉर्पोरेशन में किस तरह का शो देख पा रहे हो? क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि काफी फेयर है, अच्छा है। Not much. मुझे सोशल एक्सपेरिमेंटल शोज बहुत पसंद है। I mean, it's very interesting for sure. और इधर जो कॉन्टेस्टेंट्स है अभी 1 महीने के बाद उनको एक्चुअली लगने लगा कि वो जेल में वो ऐसे ही बिहेव कर रहे, तो इससे सोशल मुझे पहले वो बिलावल पसंद था, लेकिन अभी मुझे लगता है पायल बहुत अच्छा है। हाल ही में ईशान की इलेक्शन हुई है। अच्छा, अभी इसके बारे में नहीं मुझे बहुत पसंद है। बिग बॉस में क्रैश किया गया है, फिर से बिग बॉस का लैंड किया जाएगा, फिर से आपको लगता है कि बिग बॉस अब तो मैं ही चीज़ें करती हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता होता कि क्या करती है। तो अभी मैं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन एक बात है कि अगर जाऊँगी तो पहले वाली क्लास अपनी देखूँगी जो थोड़ी सी सहमी हुई थी या थोड़ी क्लास हुई, अभी थोड़ा सा अलग ही नेचर है जो फर्स्ट सीजन में। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे तो मैं सीजन 2 में था, मराठी में फाइनल्स में था, और उसके बाद में पहला सीजन भी मैंने फॉलो किया, तीसरा सीजन भी मैंने फॉलो किया। तो एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक यूर पार्ट ऑफ वन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं। वैसे ही आज का इवेंट है और मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा बोलकर उन्होंने इस ऐसे यूनियन के बारे में सोचा, और हम सब लोग यहाँ पे आज मिलेंगे, घर पे आएंगे, पुरानी बातें होंगी घर के अंदर की बाहर की, और बहुत अच्छा लगेगा। वी आर ऑल वेरी मच एक्साइटेड टू मीट ईच अदर वंस अगेन आफ्टर। बहुत सारे लोगों को तो मैं शायद 2-2.5 साल के बाद मिलूंगा आज,
तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बात करता बिग बॉस मराठी की, तो जो टीआरपी मिलती जो व्यूअरशिप मिलती है काफी सुधर चुकी है आप कंपेयर टू पास्ट बिग बॉस। किस तरह से आप देखते हो ये जो शो है लैंग्वेज में बिग बॉस हिंदी तो हमेशा टॉप था, पर अब बिग बॉस मराठी को भी पीछे नहीं है, किस तरह का चेंज देखते हो? बिग बॉस के जो मेकर्स हैं कलर्स मराठी, एंडेमोल शाइन में, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। उन्होंने इतना ब्रिलियंट शो डिज़ाइन किया है कि ये हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु, तमिल, जिस लैंग्वेज में भी आप करोगे ये हिट ही होगा शो। मैं खुद वैसे फिल्म की बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी पहली फिल्म मैंने की रेगे, उसके बाद और 3-4 फिल्में मराठी में मैंने की थी, और जो रिकग्निशन मुझे इस शो ने दिया, मैं मानता हूँ कि वो मुझे मेरी पहली फिल्म की सुपर हिट फिल्म से भी नहीं मिला। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा शो है, एक इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत ही मैं मानूंगा कि बहुत उपयुक्त और बहुत करेक्ट शो है। और मुझे तो बहुत लोगों ने प्यार दिया घर में मराठी में। आणि मराठीत बोलायचं झालं तर बिग बॉस मराठी हा मला वाटतं महाराष्ट्रात टेलिव्हिजनवरती चालणारा सगळ्यात पॉप्युलर आणि सगळ्यात मोठा शो आहे। त्यामुळे त्याच्यातनं जे तुम्हाला मिळतं आणि त्याच्यातनं एक संधी तुम्हाला मिळते, एक इमेज आपण म्हणूया, माणूस म्हणून तुम्ही कसे आहात हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची एक संधी मिळते। ही एक खूप छान संधी मला मिळाली, सगळ्यांनाच आम्हाला मिळाली आणि आम्हाला सगळ्यांनाच त्याच्यामध्ये फायदा झाला। सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एंडेमोल शाइन, कलर्स मराठी आणि सगळे बिग बॉसचे आमचे मेकर्स, इकडे विचुकले पण आहेत मला आता दिसले। थँक्यू सो मच। एक्चुअली जीता इनर है, बिग बॉस जीत के इनर ये है, लेकिन टू शेयर द एक्सपीरियंस इट वॉज वेरी नाइस और बहुत ही मज़ा आया। हम चारों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और ये सीजन 3 जो था वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि हम सब की दोस्ती जो थी वो ठीक थी और इसलिए सीजन 3 इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ। सर आप क्या कहना चाहोगे, बिग बॉस जीता हुआ आपके नाम है, किस तरह की फीलिंग होती है और दोस्तों से जब मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती है सर ऐसी पार्टियों में मिलते हैं? वैसे तो ये मेरी पहली पार्टी है, मैं ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं हूँ, लेकिन आज मैं शूट करके आया कि मुझे करना है, आज सबको मिलना है, क्योंकि जैसे सीजन 3 में 17 पावरफुल पीपल थे, वैसे सीजन 1 और सीजन 2 दोनों सीजन के सब लोग आने वाले हैं, सब बिग बॉस के पावरफुल पीपल, तो उनके साथ मिलना था, उनके साथ बातचीत करनी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं बिग बॉस सीजन का एक पार्ट था और एक विनर बन गया एंड मज़ा आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आपको चांस मिला, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मली बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो गए, मराठी बिग बॉस कंटेस्टेंट हो गए, विनर हो गए, बिग बॉस में जरूर जाते हैं, अगर आपको चांस मिला तो क्या आप जाओगे सर? मैं हमेशा बोलता हूँ, मराठी में बोलता हूँ की माझा प्रेक्षक मेळापण जी हवा ते मला करायचं, मतलब मेरे प्रेक्षकों को, जो मेरे फैंस हैं, उनको जो चाहिए वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और अगर उनको उनकी इजाज़त है, उनको लगता है कि मैं उधर जा सकता हूँ तो यस मैं जाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा जाने। सर हाउ डू यू सी सलमान सर एज अ होस्ट? क्या आपको कभी कम बजट से आप सलमान सर को अंदर से देख सकते हो, क्या हम आपको देख सकते हो अंदर रूम में आप सलमान सर को देखते हो? सलमान सर का मतलब एज अ होस्ट मैं जज करने वाला मतलब कौन होता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली अदरवाइज ऑल्सो एंड बिग बॉस एज अ होस्ट ऑल्सो, बिकॉज मराठी शो जो है वो महेश सर होस्ट करते हैं और उतना ही पावरफुली करते हैं जितना सलमान सर करते हैं, सो रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। और इस सीजन में जो वो आने वाले थे हमको मिलने के लिए, लेकिन तुरंत आके कुछ गड़बड़ होगी इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए हम उनको फेस टू फेस देख नहीं पाए, लेकिन स्क्रीन पे जो भी देखा इन्होंने आई एम लकी फॉर दैट कि इन्होंने इस टाइम सलमान ने मेरा नाम लिया था कि जब नॉमिनेशन का टास्क था उसमें सबसे पहला सेव होने वाला नाम मेरा था, वो सलमान सर ने वोट किया था, तो उसके लिए आई एम फीलिंग लकी और ही इज अ लेजेंड मैन। सर क्या कुछ कहना चाहोगे आज की शाम की मैं बात करूँ? जी आज की शाम की मैं बात करूँ उसके ज़्यादा आज की एक्चुअली शाम ही कुछ अलग है, बट इसकी आप जब टीवी पे देखते हो तो बिग बॉस आपको सिर्फ 17 लोग देखते हैं, लेकिन अभी आपको 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पे दिखेंगे, तो दिस इज अ थिंग, ये आप दिस इज अ फैमिली, बिग बॉस इज अ फैमिली, जब फैमिली का रीयूनियन होता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। सो आई एम जस्ट हैविंग अ फन एंड मीटिंग एवरीवन एंड हैविंग अ चैट विद देम। सर दोस्तों से मिलते हैं, विनर से मिलते हैं, तो पहली क्या बात होगी विनर से? यार मैं सच कहूँ तो मैं इसको विनर की तरह देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा दोस्त है पहले, तो विनर का हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक दोस्त ही जो हमारा दोस्त साथ बना वो विनर हो गया।
It's okay, it's okay. थैंक्स What do you थोड़ा बैलेंस कराना पड़ेगा. Ma'am, what do you want to say? All the winners are here, all Yes. the players are here. So what do you want to say? Oh, they've been, this season was really very different. As every season has been different, this was really exciting. This, I think, one of the seasons which had very high TRPs, and these guys made it. I think this is one of my favorite teams. I mean, groups पढ़ते हैं यहाँ पे, which is very obvious, but this is my favorite group that is here today, and I'm very happy that they are here. Thank you so much. Thank you. आज की शाम तो धमाल कर ही जाना है, बिकॉज बहुत टाइम के बाद इतने लोग सारे सेलिब्रिटीज बिग बॉस के साथ में, बिकॉज थर्ड का तो मैं गई नहीं थी और मैंने देखे लोगों को जब वेरी एनर्जेटिक फन लविंग एंड डांसिंग. आई एम श्योर दैट बहुत सारा मस्ती और डांसिंग होने वाला है. और स्मिता की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है. बिकॉज लास्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था 2019 में, राइट? या दैट वाज द परफेक्ट पार्टी. आई वाज वेरी हाई बट आई वाज हैविंग अ गुड टाइम. अच्छी जर्नी थी आपकी बिग बॉस की. कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर Okay, I have lot of memories. I think Shiv is very important for me. I think Smita, then रेशमा ताई भी आई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट, बिकॉज एक टाइम आ गया था जहाँ पे मैं अपने आप को खो बैठी थी और मुझे ऐसा इमोशनली में ब्रेक डाउन हो गई थी. सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी, लाइक वो बहुत मेमोरी, आई थिंक एक भी मेमोरी मैं भूल नहीं सकती बिग बॉस के बारे में. एंड इट मेक्स मी, आई डोंट नो, मैं अभी भी गुज़बॉम्ब आ रहे हैं और इट वाज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ. बिग बॉस की जर्नी जिस तरह से लोगों ने देखी, लोगों ने काफी पसंद किया और फिर लोगों की डिमांड है कि आप जल्दी बिग बॉस में काफी सालों से चर्चा चलती आ रही. बिग बॉस का नया सीजन भी आ रहा है, आप पर वो चैनल पे डिपेंड होता है. ऑब्वियसली बीइंग एन इंडिविजुअल आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरी तरफ से मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मैंने अपनी अपग्रेडिंग कैसी है, मैं कैसे दोस्तों के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ. और इंडस्ट्री में जिसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, उसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा कैसे रखा है, मुझे ये अच्छा लगेगा अपने बारे में बताना. और लोगों के साथ मैं कैसे डील करती हूँ, कैसे बातें करती हूँ और अपनी लाइफ में, बिकॉज आई गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे एवरी मिनट इन माई लाइफ. तो मेरे लिए वो बहुत एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है. बट आई लव टू बी लाइक दैट. सो हाँ, अगर आया तो ऑब्वियसली आई बी इन फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे बिग बॉस ऑलरेडी खेलने आता है. दे विल नॉट थिंक द सेम आंसर. आई डोंट नो. लॉकअप की मैं चर्चा करूँ, लॉकअप को सबको पता है एक स्टोरी है, ह्यूमन लॉकअप. तो हम आपको जो रियलिटी शो का लॉकअप है उसमें कब देखेंगे? आपको ये पता है लॉकअप में थी? ओके, सो आई डोंट केयर, आई वॉज इन अ लॉकअप और whatever, वो रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को. आई डोंट केयर बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम ट्रूथ टू माई सेल्फ. अगर मैं अपने आप से सच हूँ तो मुझे कोई नहीं हिला सकता. सो और जो लॉकअप चल रहा है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेदार लॉकअप है, जो कि मेरे भी थी. तब मेरे लाइफ में भी वो एक लॉकअप इसलिए मुझे बहुत ड्रामेदार बन चुका था. सो आई थिंक मुझे रियलिटी लॉकअप, जो इसका लॉकअप है, मुझे मुनावर ज़्यादा पसंद है. एंड आई लाइकिंग जो हिसाब से उसका क्रिएटिव है, जो चीज़ें कर रहा है, उसको लिटरली कंटेंट भी ले रहा है, क्योंकि लॉकअप में यू कैन हैव फन, यू कैन डांस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. So I have also done few things in my real lockup, so I know what is Munawar doing is doing the best. I don't know, my best wishes only to Munawar. So when you were locked up, so there were so many friends, fans wishing by you, supported you. उन सारे fans क्या कुछ कहना? That is no words will not explain that. That's just this. It's my eyes. You will understand.
have given my truth and my deepest feeling to all my fans, because I am standing right back with you. It's only because of you. Would you like to clarify things? My actions, I have already mentioned actions with words will not. So आने वाले समय में क्या I don't want to share it. There is a lot of coming, but you will see. क्या कुछ किस तरह से देखते हो आज की शाम? यार बिग बॉस वालों की पार्टी है तो ये तो बहुत इंटरेस्टेड होता है सुनने में, बट अब मैं देखने जाता बिग बॉस वाली पार्टी अब जस्ट चल रहा हूँ अच्छे से। कोई ऐसे दो सीट बोलने के लिए काफी एक्साइटेड हो बिकॉज हिंदी मराठी काफी जन है यहाँ पे। ओके कोई यार मराठी बिग बॉस में आई नो आदेश, हीना, दैट्स इट, और किसी को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट अगर कोई हिंदी वाला आता तो श्लेक्षी में भी किसी को जानता हूँ। शो की मैं बात करूँ जिस तरह से आपको क्या मिला है शो में और क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को? मज़ा आ रहा है यार करने में, कुछ नई चीज़ करने को मिल रही है, आगे कुछ डिफरेंट चीज़ें आने वाली है जो मुझे एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं एक्साइटेड फॉर दैट। हाउ डू यू सी रीम एंड एज अ स्टार? रीम एंड देन यार मुझे पहले मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम एंड दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी स्वीट विद एवरीबडी। एक्चुअली हम तीनों के साथ में शूट करने में बहुत मज़ा आया। And if you want to pick a best thing about it, as a co-star, as a friend, what will be there? यार अबाउट जैन ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज वेरी, ही विल गिव यू दैट वाइब कि आप एक कंफर्टेबल हो जाओगे उसके, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। हिंदी में कहना है या मराठी में कहना है? हिंदी में कहना है। डेफिनेटली बाकायदा शानदार पार्टी है और मैं तो ऐसे ही जैसे बिग बॉस में फर्स्ट सीजन में मराठी फर्स्ट सीजन में था, जैसा सिंपल था वैसे आज भी हूँ। अपना काम है लोगों को हंसाना और कॉमेडी करके लोगों के होते पे मुस्कान लाना। तो बिग बॉस के घर में मुझे उसी के लिए भेजा गया था। मुझे पूछा गया था कि आप घर में जाके क्या करोगे, तो मैंने बोला था कि घर को हंसता खेलता रखूँगा। तो वैसे मैंने किया, वहाँ पे बहुत मज़ा आया, फाइट भी बहुत हुआ। हालांकि हर बिग बॉस में होता है, फाइट होता है, हंसी मजाक चलता है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, ड्रामा होता है। जैसे हमारे बिग बॉस में था फर्स्ट सीजन में और हिंदी में भी चलता है। तो बहुत मज़ा आया फर्स्ट सीजन में, बाकी सीजन भी मैंने फॉलो किए और आज ये पार्टी में बहुत सारे लोग आए और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्मिता गोलकर मेरे साथ फर्स्ट बिग बॉस में थी। सुशांत था मेरा, सुशांत शेला, हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती रही वहाँ पे और यहाँ पे आया, आप सबसे मिला हूँ, तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बट अनफॉर्चुनेटली तो हो नहीं पाया। तो फाइनली आज में शादी हो रही है। मैं आते वक्त रास्ते में इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं लिटरली गाड़ी में अकेले ही म्यूजिक लगा के डांस कर रही थी, बिकॉज आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं सबसे मिलूंगी इतने दिनों बाद। आगे ही मुझे मेरे दोस्त के कंटेस्टेंट्स मिलने लगे। हालांकि बीच बीच में मैं सबसे मिलती रहती हूँ, सबके टच में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं है कई सालों से, ऑफकोर्स मिलते जुलते हैं, बट एक साथ मिलना वो हो नहीं पाता। एंड थैंक्स टू स्मिता की, बिकॉज ऑफ स्मिता ये इनिशिएटिव हर साल लेती है, वी आर एबल टू टच। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सो मच फन। मैं सच में इतना ज़्यादा मिस कर रही थी सबको एक साथ मिलना, एंड टुडे वी ऑल आर हियर, सो आई एम सुपर हैप्पी। कोई ऐसी मेमोरी, एक मेमोरी हो तो बताओ। ये तो मेमोरीज का मतलब पूरा अफसाना है, और इस अफसाने का अगर एक किस्सा भी अगर बयां करने जाओ तो दूसरे किस्से के साथ इंजस्टिस हो जाएगा। हमारी पूरी जर्नी ही इतनी शानदार रही है सबकी, फिर वो चाहे मेरे सीजन मराठी सीजन की हो, बिग बॉस मराठी सीजन 1 या बिग बॉस सीजन 12 जिसमें मैं थी। और देखिए ना कैसा ये एक कॉम्बिनेशन है कि मेरे मराठी सीजन के जो दोस्त थे,
मैं और मेरे दूसरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मेरे मराठी सीजन का और हिंदी सीजन का फ्रेंड्स का ही एक ग्रुप बन गया और देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन अस। जैसे श्रीशंक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वैसे ही अब वो स्मिता का भी बहुत अच्छा दोस्त है और जसमीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो सीजन 12 में मेरे साथ थी, वो अब स्मिता की भी दोस्त है रोशनी। सो मेरे ये दोनों सीजन के लोग एक साथ इकट्ठा इस पार्टी में जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ एवरीवन लाइफ। मतलब जो भी हम कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस में, वो जर्नी हम जी चुके हैं, हम सबके लिए बिग बॉस बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो स्पेशल इस वजह से है कि उसमें जो भी लोग थे हमसे जुड़े हुए, फिर चाहे वो कंटेस्टेंट हो या हमारी कास्टिंग क्रू हो जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे थे वो लोग हो, वो सारे ही इस जर्नी का हिस्सा है और हमारी सारी यादों का हिस्सा है। सो वी आर आई कैन से कि हमारा एक दिल से कनेक्शन है एक दूसरे के साथ एंड वो कनेक्शन हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। Thanks to Smita for bringing all of us together. And I know कि 2 साल से हम लोग पैंडेमिक की वजह से मिल नहीं पाए, रियूनियन हो नहीं रहा है, so I think this was a very I'm looking forward to it बहुत ज़्यादा बिग बॉस की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? एक्चुअली मेरे सीजन में लाइक हिंदी बिग बॉस में सिर्फ मेगा जी है, so I'm missing every one of them. I think Saurabh is going to come, I heard so. But yeah, I'm very close to Srishan's wife, so I'm missing them more. And Big Boss में मेरा जर्नी बहुत शॉर्ट था, उसके बाद हमारे इतने सारे मेमोरीज बन गए तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी आया दिलरुसिया, आपने देखा दिलरुसिया? जो आपने नहीं देखा अभी तक, 1 करोड़ व्यूज हो गए एंड सो ओवरवेल्म। प्लीज शो मोर लव टू इट एंड बहुत जल्दी बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस आने वाले हैं। आई एम नॉट अलाउड टू से नाउ, आई हैव टू वेट। Obviously, your journey was very small, so would if you get a chance to go inside the house one more time, will you go? Why not? I'm grateful to Big Boss. Like Big Boss की वजह से now मैं बॉम्बे में हूँ, आप सबके साथ बात कर पाती हूँ। अगर वापस थोड़े दिनों के लिए जाना होगा तो मैं जाऊँगी, पूरे टाइम के लिए I don't think so I can stay, you know. I'm someone who is not very controversial, I'm someone who doesn't like to fight और ज़्यादा तो घर में ना माहौल ऐसे बन जाते हैं कि मैं तो पागल ही हूँ, है तो थोड़े टाइम के लिए जाना होगा, I would love to, why not? Yes, it's our pleasure always, like I told last time also, that to host such great people and your team, especially you are there for the all matches. Keep coming, it's our place. Get your VPN right and keep coming over here. Thanks to our media people, they are always there for us. There's a big coverage for launch event also. There's a good buzz. Hopefully we create more buzz and keep rocking and keep partying. हमारे शेफ्स ने कुछ स्पेशल फूड बनाया है हमारे सारे कंटेस्टेंट्स और सारे एक्स बिग बॉस के लिए, सो दैट दे फील गुड अबाउट इट एंड दे कीप कमिंग ओवर हियर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, वेरी सून वी विल कीप अपडेटिंग अबाउट इट। थैंक यू, बाय। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट आज बिकॉज रियूनियन काफ़ी प्लान होते हैं लेकिन होता नहीं है, बट आज हुआ है। आई एम सीइंग अ फ्यू नोन फेसेस ओवर हियर, तो काफ़ी एक्साइटेड है। जिस तरह का पैंडेमिक था, there are so many things happened in the past, तो अब एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है लोगों को, तो क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके लिए? मेरे तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। आई मेड अ वीडियो, आई डन अ कपल ऑफ वीडियोज एंड आई एम टूरिंग विद निकाल, आई एम सन फॉर ऑडको दादा एंड बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रख लिया है, मैंने बंगाली प्लेबैक भी किया है। सो या देयर इज अ लॉट गुड वर्क दैट्स ऑलरेडी बीन डन, सिर्फ रिलीज नहीं हो रही है एंड और भी बहुत कुछ होगा। सलमान सर के साथ द बेस्ट मेमोरीज वी यूज्ड टू हैव वीकेंड का वार एपिसोड्स,
एंड उसके अलावा आफ्टर पार्टी जो थी बिकॉज की वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे सलमान से पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिला, सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड आई थिंक एवरी मोमेंट विद सलमान इज अ फेवरेट मोमेंट बिकॉज ही इज Salman sir. So as you came back to social media, what kind of response you are getting? I'm getting a lot of good response. Our fans are really happy and they were very happy that I went off social media also. And now that I'm back, they are really excited because काफी सारी खबरें आ चुकी है already regarding my songs and all. Before I could say anything, my fans found out and news people also got to know. I'm doing a song with Ashish Kaur also, and yeah, so मतलब काफी सारी अच्छी चीजें हो रही है. बस मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, अभी मेरा काम बोलेगा. आई थिंक दैट्स बेटर. पूरे संसार को, नॉट ओनली मुंबई, पूरी दुनिया को अच्छी लगी थी. अभी जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा क्या आया, वेब सीरीज आई. मैंने पूरी देखी नहीं, मैंने काम किया है, लेकिन मुझे जो मजा आया था सीरियल करने में, उतना मजा इधर नहीं आया. क्या आपने किसी को मिस किया सीजन में? आप बार बार मत पूछो, फिर मेरा इधर कुछ होता है. आपको मालूम है, फिर क्यों पूछते? अजय भी नहीं थे, सुशांत ने बुरा लगा. मस्ती करती है. आज इनटू 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. बिग बॉसची काही मेमरी, खूप साऱ्या मेमरीज आहेत. अख्खा बिग बॉस मेमरेबल आहे. आम्ही तो करायचा प्रयत्न केला आणि स्मिताला खरंच थँक्यू म्हणते. इनफॅक्ट मगाचपासून मी तिला शोधते, कुठे मला सापडत नाही ती, तर खरंच थँक्यू म्हणायचं तिला, कारण एवढी लोक एकत्र येणं नॉट पॉसिबल आणि ते खरंच ती दरवर्षी करते. खूप छान वाटतं. कोई ऐसा डिफरेंस बिग बॉस हिंदी और मराठी में क्या डिफरेंस अंतर क्या लगता है? मुझे एक चीज़ लगती है कि मराठी बिग बॉस बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है. ऐसा लगता है कि इमोशंस को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जाता है, और हिंदी में वो थोड़ा कम है, लेकिन मराठी में वो ज़्यादा है. As now the kind of response Marathi Big Boss is getting, Hindi Big Boss was always on the top. Now the Marathi Big Boss is also making a tough competition. Yes. What message would you like to give to the फैंस, क्यों से नहीं बोल दो. फैंस को तो मैं यही कहूँगी कि हर रियलिटी शो अपने आप में एक दिलचस्प एक शो है, और मराठी बिग बॉस सच में म्हणजे तो एवढा वरती चालला आहे की हिंदीला पण खूप वेळा त्याने बीट केलं. आमचे खूप सारे वीकेंडचे असे होते एपिसोड ज्यांनी हिंदीला पण बीट केले. तर ऑडियन्स फक्त आणि फक्त एन्जॉय करणार आहे, आणि आय एम शुअर नेक्स्ट सीझन मराठीचा अजून टफ होणार आहे. वी हॅव सेट दॅट बेंचमार्क. हा, मला तर जायला खरंच आवडेल, कारण कसं आतमध्ये गेल्यानंतर खरंच विसरून गेलो. जसं हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसमध्ये काय वेगळेपण आहे असं जर मला विचारलं तर मी खरं सांगेन, जसं ही म्हणाली की आपण काहीतरी ठरवून आलो म्हणून खेळायचं असं नाही होते. प्रॉपर आपण जसे आहोत तसेच प्रेझेंट होतो. सच्चेपणा, खरेपणा असतो मराठी ऑडियन्सला, तेच नव्हतं. आणि मला वाटतं हिंदी ऑडियन्स पण खूप सारे आहे ज्यांनी मराठी बिग बॉस बघितलं, तर हेच वेगळेपण आहे मराठी बिग बॉस. आणि 4थ्या सीझनमध्ये जायला तर खूप मजा येणार आहे, कारण जे धावून गेलेलं आहे ना काही गोष्टी, त्या तिथे जाऊन धमाल करायची, हे आवडेल आम्हाला. मैं भाग रही हूँ, मुझे चलेगा. मैं भाग रही हूँ, वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होगा, और क्या होगा. अच्छा, मुझे चलेगा. मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ, अगर वो बना रहे हैं तो अभी अनाउंस किया, तो उनको ऑल द बेस्ट. और अब इसका हिस्सा बनना चाहूँगी, आप जरूर बन सकते हो. हाँ, मैं इस तरह से हिस्सा बनना चाहूँगी कि उनको मैं मिलूंगी और पहले ये पूछूंगी कि आपके मूवी का नाम क्या है. तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तभी तो देखेंगे ना हमारे ऑडियंस जो है. तो अभी जा रही हूँ मैं, चलो. थैंक यू. बेसिकली ये बिग बॉस का 3rd सीजन हो चुका है. मैं 2nd सीजन में कंटेस्टेंट था. मैं अंदर कुछ नया हफ्ते रहा, बट जो अंदर का जो एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी, जितना मैं देखा, मैंने जितने को पूछा है, उतना मुझे पता चला कि लाइफ बहुत सेम हो जाती है.
और लाइफ चेंज होने के बाद में मतलब आप देख लो ना कि घर के अंदर से हम लोग कितने दिल्ली के झगड़े किया करते थे, आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हम लोग साथ में मजे कर रहे हैं। ये एक अलग बात है, अंदर की दुनिया अलग होती है, बाहर की दुनिया अलग होती है। जैसे हम लोग अंदर जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, अंदर जाने के बाद एक 10 दिन के बाद हमें लगता है कहाँ अगर फंस गया रहा कब बाहर निकले, लेकिन जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं ऐसा लगता है यार ये जर्नी जल्दी खत्म ना हो, हम लोग और अंदर हैं। लेकिन जब बाहर आना होता है, जैसे जैसे एलिमिनेट होते हैं, विनर होता है, डिस्कस बाहर आने के बाद में चीज़ें फिर से अलग हो जाती हैं। जो जितने भी गिले शिकवे होते हैं सब मिल जाते हैं, सब एक दूसरे के गले में गले डालते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। तो वही आज एक दिन है। और सेकेंड सीजन के बाद भी एक पार्टी स्मिता ने रखी थी, इस बार भी उसने रखी है। सो वी आर हैविंग फन एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट यू ऑल गाइस एंड टू मीट अदर पीपल ऑल्सो। सॉरी जी जी बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं 4th सीजन में आऊँ मराठी या तो फिर हिंदी के नेक्स्ट सीजन में भी आऊँ, लेकिन ये बिग बॉस की इच्छा है। तो आपका अगर शायद कोई इंटरव्यू देख रहा है बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट सिलेक्ट करता है बॉस बिग बॉस 4th सीजन में मैं आने के लिए तैयार हूँ, ले लो भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय। Thank you. Yeah, you are. This party is actually for you guys. Guys, एक मिनिट. थर्ड सीझन तर दिस इज वन बिग फॅमिली आणि सगळ्यात आपल्या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे की हा जो प्रवास आहे हा फक्त आपणच अनुभवलेला आहे. थोड़ा हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं हिंदी में. तो जितने यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सब ने एक जर्नी जो है जो बिग बॉस हाउस की जर्नी है इसको एक्सपीरियंस किया है जो आम आदमी को करने के लिए नसीब में नहीं होता है. एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी. आई होप यू ऑल अग्री. The ups, the downs, the lows, the highs, everything together, and it is and very importantly, आपण जिकडे इथे कुठेतरी फिरत let you lay